tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। False start, might have just been some jitters about that run up and trying to have that mechanism going up and then trying to deliver the ball. So here's the first delivery now. Full delivery, excellent delivery to begin. Right on money. Jagat Sarkar behind the stumps. A popular figure when it comes to tennis cricket all over India. All these players, different 12 teams, 24 players. Very popular. Fan following is just too much. Reverse sweep attempted. That's in the gap. And that will be a boundary. First MCT boundary in this innings coming from the bat of Viru Aghela. Just bowled it, pushed it away. And always ready was Viru Aghela. Just got a bit bat on it. And in the gap it went for a boundary. Straight away some reinforcements have been placed on the boundary rope. Man at wide-ish backed point. We now just moved towards the third man region. Sahil Gaonkar. It is Prathamesh on the fence. So Prathamesh Naik has been placed on that boundary rope straight away. And one man on the square leg fence. Mohit Gaonkar. Nicely dabbed. Straight to the fielder. And will just be one. The score moves on to 5. With that single first over in progress in this batting of Gumteshwar Salsit, who have inserted to bat first by Ganpati Warriors Ponda. Match coming up next, Aimauli Dingane Kudar to take on Bhavyan Sports Saish 11 Malvan. Good delivery in Dipa and just places it in the cover region straight to Amir. Will just be one. Gets off the mark straight away, does Matin Khan. Score moves on to 6. 8 overs contest. First overs mandatory power play. Short delivery. Thumped. And that has been thumped on the bounce into the fence over mid wicket for a boundary.
Second boundary, second MCD boundary of the day. Viru Agela, short pitch delivery from Ankur Singh, and that was pummeled over the mid-wicket region for a boundary. Score moves on to 10. At least around 60-70 with the kind of batting. That's nicely played. Up and over the infield. Over covers this time. Again, rise in bounce. And the left armour has been smashed to the boundary. Score moves on to 14 after completion of the first over. 14 without loss after the first over. Gumteshwar Salset. Skipper to start off from the opposite end. Pranal Sawant. 14 without loss after the first over. Some onslaught by Viru Agela. One reverse, next one over square leg, and the third one, which was a lot more convincing over the cover region. Matin Khan on strike. Hesitation, and will make it quite comfortably. Yes, no between both the batsmen. Viru Agela not quickly responding, and Matin Khan already at the middle, and which was just a bit hesitation. Luckily, it didn't go to hands properly, and then the fielder didn't thought of throwing it. A single has been taken in form of leg byes. Ajay Halgekar, the fielder down there, now brings Viru Agela back on strike. Where does he go now? That's a no ball, and has just dabbed it for a single in the cover region. Pranal Sawant just trying to generate some extra pace, or just that yard of extra zip on the delivery has stepped over. So this will be a free hit. Opportunity for the batsman. There he goes, Matin Khan, and has clobbered that one. First MCD maximum of day 3 coming from the bat of Matin Khan. Just a short arm jab, and it goes over the mid-wicket fence for a maximum. Score moves on to 23. Now a man has been placed on the wideish long offense. Maybe we can say an extra cover on the boundary rope. That's up in the air and taken. Diptesh Palkar taking the catch. And the first wicket down. Matin Khan departs. That's a big wicket. Gumteshwar Salset have been rocked early. 23 for 1. Gumteshwar Salset.
न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। चक्को चौको की बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौको की बौछारे या गिर जाए डंडी। घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला, घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। आई 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 अपनी मांद्रे चैंपियंस ट्रॉफी, मांद्रे। Viraj, the new man, in replacing Matin Khan at 23 for 1. Pranal Sawant has got rid of the dangerous Matin Khan with a short pitch delivery. Good delivery in the gap, and that will be for fast outfield here into him on the Suresh Raina ground. That was placed beautifully between both those men. Man at point and back to the point. And Viraj gets off the mark with the boundary. Score moves on to 27. Placed it perfectly between those two men. And what a way to get at the mark. Looks in some supreme touch. Does Viraj? Good delivery. Just gets thrown at the bat. Very lucky. If that would have been crashing onto his legs, would have been goner. But not to be very fortunate. Score moves on to 28. Again brings Viru Aghela back on strike. Nicely played again with soft hands. Bit of fumble from Chandan Naik, but it's just the single. After completion of 2, it's 29. 29 for 1 after completion of 2 overs. Gumteshwar Salsit. 15 runs coming from that over. 14 from the first, 15 from this, and a wicket as well. That too, a big wicket of the spearhead in the batting department as far as Gumteshwar Salsit were concerned. Matin Khan. Mandre Champions Trophy, Champions Trophy. Change in bowling, it will be Amir Gadekar. One of his favorite grounds to play cricket on has been in Song most of the times when he comes on to play here. Some fond memories of this particular venue for Amir Gadekar. Let's hope he can replicate it same today as well. Slow delivery first up, right on the tummy of Viru Aghela. Was intending to play it on the mid-wicket fence. Let's check the field. What kind of field do they have? Man at deep square leg, mid-wicket, long on. Nicely dabbed. Round to the third man region, down to Prathamesh, just one. And a man at extra cover as well on the fence. Ankur Singh patrolling that boundary. Score moves on to 30. 30 for the loss of 1. Third over in progress. From the third to the sixth, you can opt for the MCT over, where all the fielders will be inside the 30-yard ring. Full toss. This time straight to the fielder. Ankur throws it back pretty easily as well.
Just a single taken by Viraj. Score moves on to 31. Akhil Parab with the manual scoring. Ajit with the YouTube scoring. That's up in the air. Fielder won't be getting there. Falls in no man's land. Miscued. Maybe the outside half of the bat. Slower delivery as well. You get a lot more from this particular bowler, Amir Gadekar, when it comes to this kind of cricket, shorter format of the game, lot of variations. Nicely played, straight to Diptesh. And that will just be one. Requesting 12th men of both the teams, please be in the comm box. 12th men of both the teams, please be in the comm box. It's mandatory to send your 12th men in the comm box. Goes up and over. Fielder, hold out, gone. Straight to Ankur Singh. And Viru Waghela has to depart. Was looking for that shot over extra cover, but the man plays there. Takes an easy catch. It was in the air for a bit. And cool as a cucumber comes underneath and takes the catch, Ankur Singh. And a second wicket down of Gumteshwar Salset. He's gone for 17 of just 11 deliveries. Champions Trophy. Mandre. Champions Trophy. Champions Trophy. आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। चक्को चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी। घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला, घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। आई 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 अपनी मांद्रे चैंपियंस ट्रॉफी। Mandre Champions Trophy. Champions Trophy. Three overs done and dusted, and looks to be the MCT over, where all the fielders will be inside the 30-yard ring. Ankur Singh will be up for the challenge in this MCT over, and from the other end it is Dinesh Kadam, who has just been brought in after that dismissal of Viru Waghela. Gone for 17 of 11. What over that was from Amir Gadekar. 4 runs and that prize wicket of the overseas signing of Gumteshwar Salset. You need to complete this over very quickly. The MCT over. On the 35th minute, you need to start the 8th over, otherwise penalty will be given. Here's the delivery, swing and a miss. Excellent delivery. Again, bowling outside the off stump, which is not allowing Viraj to go over the top. 33 for the loss of 2 wickets. More than 8 lakh views for this MCT 2025. Battery.ai, Mandrim Champion Trophy 2025. Short delivery, and that short delivery has been thumped over the cow corner for a boundary by Viraj. Again, that short delivery, tall man gets on top of it and hits it to the vacant region. Score moves on to 37.
Two deliveries, 4 runs have been scored. What will be the next? Short delivery again, and that is big. That is massive. It's on the street. And it's out of here from Viraj. What a hit that is. It doesn't matter if you are an overseas player or you possess some reputation. Viraj knows only one thing: see the ball, hit the ball, and clear the ball quite comfortably. Score moves on to 43 with that 6. How about that for a stroke? Not messing around, not hanging around bit. And that was absolutely blasted onto the street. This time, oh, gone! Straight to Prathamesh Naik. That was traveling. Left-handed batsman up against the left arm. This will be interesting now. What kind of angle does Ankur Singh tries and bowl to him? Jagat Sarkar just directing the field from behind the stumps. Goes down the ground. Thumping start and gets off the mark with a boundary. Score moves on to 47 with that hit down the ground. Swing missed. Dot delivery. 2 boundaries and a maximum in that over, and that wicket of Viru Aghela. After completion of the 4th at the halfway stage, Gumteshwar Salset 47 for 3. It will be change in voice at the start of the 5th. It will be Nana Parab with you in the com box. के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर इसी तरह से चलते रहा तो 10-11 की रन रेट लग के चलना चाहते हैं हम लोग। और कौन से बल्लेबाज अकाउंट में हैं जो बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं? अपने पास बादल नायक और नरेश और विकी, ये 3 बल्लेबाज हैं अंदर। मतीन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार है और इस बार ऑफ साइड पर गेंद को खेला गया था, तो 1 रन मुकम्मल गया, दूसरे के लिए वापस और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मतीन, थैंक यू सो मच। ओवर टू कॉम बॉक्स। हेलो, नमस्कार प्रशांत जी। चलिए फिर से एक बार मुकाबले कर चलते हैं। स्कोर रुका चाहे 51 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 ओवर के बाद शुरुआत हुई 5वें ओवर के। अमीर गडेकर बॉलिंग 12 पर। अमीर का लगभग दूसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर की बात की जाए तो अमीर गडेकर ने अपने निधि गोटे में सिर्फ 4 रन दिए थे और विकेट चटका तो अमीर गडेकर ने। सामने बल्लेबाज तैयार। अच्छी गेंद कोच के निकाला। डी बैक स्ट्राइक ओवर में खिलाड़ी मौजूद नहीं है। यहाँ पर गेंद को कोशिश कर रहे थे और गेंद को उठाए फील्ड करते, तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। ऐसा अनुभव है दोनों के पास। अमीर गडेकर का पहला ओवर एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन 1 विकेट, लेकिन 5वें ओवर की शुरुआत की है। अच्छी शुरुआत। पहली गेंद के ऊपर एक चौका निकला, उसके बाद 2 रन।
यानी कि पहले 2 गेंदों में 6 रन खर्च किए, फिर से एक बार लेफ्ट हैंड और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए शफल होकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ना विकेट के पीछे यहाँ पर अच्छा काम नहीं पा रहे विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, मगर किसी जगत सरकार जो एक ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम पे शामिल है, गणपति और यश फोंडा क्रिकेट टीम टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अच्छी गेंद गुल्डे स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने तेजी की रफ्तार से साथ विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं अमीर गडेकर, जो पहले ओवर की समाप्ति उसी के अंदाज से गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से मौका नहीं दे रहे, ललचाते हुए बल्लेबाज के लिए। शॉर्ट गेंद आगे निकल कर खेला, यहाँ पर डीप लॉन्ग में खिलाड़ी मौजूद है, 30 सर्कल में गेंद को फील्ड करते, अजय हलगेकर गेंद को गैदर करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, 1 रन के साथ स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ, कुल मिला के 54 रन स्कोरबोर्ड पर। चौवन रन स्कोरबोर्ड पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं, खासतौर से दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। दिलीप बिजुआ नए बल्लेबाज का सामना करेंगे अमीर गडेकर की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के से गेंद को ढीले हाथ से गेंद को खिलाड़ी बैक शॉट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी चंदन नाइक गेंद को फील्ड करते, थोड़ी सी मिसफील्ड चंदन नाइक की, लगभग गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 2 ओवर का बात की जाए तो 2 ओवर में 12 रन और 1 विकेट हासिल करते हुए अमीर गडेकर 5वें ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 55 रन स्कोरबोर्ड पर। और तो प्रशांत जी थैंक यू वेलकम बॉक्स। बहुत इम्पोर्टेंट बात और प्राउड मोमेंट होगा हमारे सब के लिए, क्योंकि 21 लाख का सफर जो है वो बिल्कुल पूरा होने वाला है। tenniscricket.in पर केवल 20 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, 20 फॉलोअर की ज़रूरत है। अगर 20 फॉलोअर यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। 21 लाख का आंकड़ा, एक मैजिकल फिगर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें tenniscricket.in पर, और एक बहुत बड़ा पल आज हमारे लिए रहेगा, 20 सब्सक्राइबर, बहुत इंपॉर्टेंट। ओवर टू कॉम्बॉक्स। 5 ओवर में 55 रन स्कोरबोर्ड पर अमीर गडेकर के 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ और आने वाले 3 ओवर के बाकी शेष है, यानी कि प्रति ओवर 11 रन के औसत से रन बन रहे। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों टीम के साथ, लेकिन स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर जगत सरकार, अनुभवी खिलाड़ी और ओवरसीज खिलाड़ी दोनों की बात की जाए तो अंकुर सिंह जो विकेट के पीछे दिखाई दे रहे, और गेंदबाजी की बात की जाए तो खुद का दूसरा ओवर लेके पहला ओवर लेके जगत सरकार का थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज से ले आगे निकल कर खेलने की कोशिश, देखा तो गेंद गुल्ले स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद तेजी की रफ्तार से निकली, थोड़ी सी दिक्कत बन रही है, चकमा खा गए बल्लेबाज, गेंद विकेट के पीछे पहुंचती हुई डॉट गेंद, स्कोर वहीं पर रुक चुका है 55 रन स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार इसी अंदाज से उठाने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन नाकामयाब रही है। खासतौर से कोशिश एक तारीफ करने वाली गेंदबाजी की, देख सकते हैं बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से ललचाया, देखा टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकली, लग रहा था यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन स्कोर वहीं पर रुक चुका है। जो 21 लाख यहाँ पर सब्सक्राइब, यहाँ पर देखिए अल्टी पल्टी सेट, एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो बेहतरीन पहले 2 गेंदों में 2 गेंद डॉट निकले, उसी के बाद तीसरी गेंद के ऊपर छक्का निकला, खासतौर से जगत सरकार के विरुद्ध एक बेहतरीन शॉट निकला। देखिए अच्छा शॉट यहाँ पर शॉट मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद था, बेहतरीन ना कैच को गैदर किया, जिस खिलाड़ी की चर्चा करें अजय ने बेहतरीन कैच को गैदर किया, लग रहा था एक काफी मुश्किल बनेगा, लेकिन अच्छा कैच लपकते हुए बिल्कुल सेलिब्रेशन करने का मौका गेंदबाज के लिए है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता के बाद दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है,
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट टेनिस क्रिकेट .in ने 21 लाख का आंकड़ा पूरा किया है। जोरदार तालियां दोस्तों, जिन्होंने सपोर्ट किया पिछले 10-12 साल से, उनके लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। संघर्ष में आप हमारे साथ रहें और एक बहुत बड़ी उपलब्धि 21 लाख का आंकड़ा मैजिकल फिगर टेनिस क्रिकेट .in ने पूरा किया है। ओवर टू कम्बास। 4 विकेट के नुकसान पर 61 रन ये लेखा जगह इस मैच का टॉस जीता गणपति और यश फोंडा क्रिकेट टीम ने, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला टीम कप्तान का। लेकिन अमीर गडेकर की बात की जाए तो 2 ओवर के कोटे में 12 रन, 1 विकेट, एक अच्छी गेंदबाजी। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान पर बादल नाइक, जगत सरकार एक 3-4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, यानी कि 6 ही रन खर्च किए जगत सरकार ने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पेश किया था, लगभग तेजी की रफ्तार विकेट के पीछे अंकुर सिंह गेंद को गैदर किया। अच्छी नपी तुली जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज के लिए मौका दे रहे। उसके पहले का विकेट जो दिलीप बिचवा जो आउट होके वापस लौट चुके। अच्छी गेंद, हल्की से गेंद को ड्राइव कर शॉट मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, 30 सर्कल में गेंद को फील्ड करते अमीर गडेकर गेंद को गैदर किया, यानी कि 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर का कोटा समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद स्कोर रोका है 62 रन स्कोरबोर्ड पर। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 62 रन और आने वाले 2 ओवर बच चुके हैं। 2 ओवर में कितने रन बने कम से यहाँ पर एक कोशिश जरूर करेंगे एक दूसरे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की। आने वाले 2 ओवर कल बात की जाए तो आज इसी ओवर में अंकुर सिंह ने शुरुआत की थी इसी ओवर पहले मुकाबले की, जहाँ पर 14 रन खर्च किए थे। प्रज्वल सावंत का दूसरा ओवर 14 रन 1 विकेट का, तीसरा ओवर अमीर गडेकर 4 रन 1 विकेट। लेकिन फिर से एक बार प्रणल सावंत, टीम के कप्तान है प्रणल सावंत, खुद का दूसरा और टीम की ओर से महत्वपूर्ण 7वां ओवर लेके स्ट्राइक पर बादल नाइक। अच्छी गेंद यहाँ पर अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज के लिए यहाँ पर अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन साहब अपील को नकारा ऑफिशियल्स ने। ऑफिशियल्स का इशारा हमारी तरफ बनता हुआ लेग 22 का। इसके बाद 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ 63 रन स्कोरबोर्ड पर, 63 रन लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिनेश कदम एक बार जरूर गेंद को खेला है, लेकिन विकेट जहां पर फॉलोथ्रू में गेंद को गैदर किया। 5वां विकेट निकलता हुआ घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम का। फोंडा क्रिकेट टीम की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन विकेट खो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा गेंद को गैदर किया, फॉलोथ्रू में कैच लिया और यानी कि 5वां विकेट निकलता हुआ घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम का। नरेश असोलेडक यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, नरेश जी और उन्हीं के साथ बादल नाइक ये जोड़ी मैदान पर। लेकिन प्रज्वल की बात की जाए तो अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट चटका है। 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर प्रणल सावंत सामने कमेंट्री बॉक्स के सामने से। अच्छी गेंद और पीटीलो बल्लिया से गेंद को खेला डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए एमसीटी चौका, 4 रन के लिए बेहतरीन चौका निकला, जहां पर देख रहे थे गेंद थोड़ी सी बल्ले के बीचों बीच लगी और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
शुरुआत आते आते शुरुआत की जाए, यहाँ पर अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, जहाँ पर बल्लेबाज नरेश ने अनुभव बहुत है, क्रिकेट की कहानी भी बहुत सी जुड़ चुके हैं उनके साथ। तो गेंदबाजी मार्ग पर प्रणय फिर से एक बार पेश लग चुका है, हाउ में गेंद डीप लगान से खिलाड़ी मौजूद है अजय, और बेहतरीन कैच को गैदर किया, दूसरी बार कैच लिया यहाँ पर इस मैच में। नरेश ने इरादे स्पष्ट किए थे लेकिन सही साबित नहीं हुए। विकेट नंबर 6 विकेट निकलता हुआ घुंटेश्वर साल से क्रिकेट टीम का, तो 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर रुक चुका है। आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। चक्को चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी। घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला, घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। आई 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 अपनी मांद्रे। नए बल्लेबाज मैदान पर विक्रम नाइक, विकी यानी कि एक नाम से बहुत से पहचान है गोवा में, गोवन भूमि में, ओ विकी स्ट्राइक पर सामना करेंगे प्रणल के इस ओवर की अगली गेंद का। फुल टॉस बनाकर गेंद को खिला, डीप कॉर्नर पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन चंदन नाइक देख सकते हैं आप, बेहतरीन फिर से एक बार कैच लिया और लगातार 2 विकेट लिए यहाँ पर गेंदबाज ने। प्रणल सावल टीम के कप्तान है, कप्तान के साथ देख सकते कितनी बेहतरीन गेंदबाज, बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे। अभी तक 4 सफलता हासिल करी अपने टीम के लिए, एक महत्वपूर्ण ओवर साबित होता हुआ। आते आते वापिस लौट चुके दरों के साथ साथ तीसरा यहाँ पर और एक विकेट। आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। चक्को चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी। घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला, घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। आई 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 हेलो, थैंक यू डीजे। और ऑन हैट्रिक का मौका जो कप्तान के लिए कल के दिन के लिए भी एक हैट्रिक हुई थी, समीर जी अनुराग ने हैट्रिक की थी, तो इस बार मौका बन रहा है उनके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं फॉलो थ्रू में मौका बन रहा है और आज के दिन बाद देखा तो विकेट हैट्रिक पूरी की और 5वीं सफलता इस इनिंग में। पहले दिन में 2 यहाँ पर इतिहास हुए थे मेरे ख्याल से, अपाली सर ने 5 विकेट और उन्हीं के साथ अमीर सालगांवकर, ये तो यहाँ पर खिलाड़ी ने 5-5 विकेट की इनिंग में लिए थे। तो इसी जगह यहाँ पर आज प्रणल सावल ने बेहतरीन गेंदबाजी, टूर्नामेंट की हैट्रिक, दूसरी हैट्रिक, 5 विकेट, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सफलता हासिल कर। टीम कप्तान है लेकिन टीम कप्तान की बात की जो बेहतरीन क्रिकेट अनुभव के साथ खड़े उतरे हैं, तो स्कोर वहीं पर रुक चुका है। 67 रन, 67 रन स्कोरबोर्ड पर। यानंतर सामना खेळवला जाईल भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण वर्सेस आई माऊली कुडाळ या 2 संघादरम्यान। तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की आपल्या उपस्थितीची नोंद आपण करायची आहे व पुढील सामन्यासाठी आपण सज्ज राहायचं आहे। भव्य स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण वर्सेस आई माऊली कुडाळ या 2 संघादरम्यान यानंतरचा सामना सुरू होणार आहे। इनिंग ब्रेकच्या दरम्यान या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल आजमावला जाईल, फोटो सेशनचा कार्यक्रम होईल, त्यामुळे दोन्ही संघांनी या सामन्यासाठी सज्ज राहायचं आहे। मोहित गांवकर, इस मैदान की बात की जाए, इस मैदान ने उन्होंने इस क्रिकेट की शुरुआत की थी। ओ मोहित गांवकर बॉलिंग मार्ग पर, आखिरी ओवर है मोहित गांवकर का, छोटा सा रनअप और सामने बल्लेबाज तैयार।
ऑफ स्टंप के बाहर पिच किया, शफल होकर डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद के खिलाड़ी ने मौजूद है लेकिन दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। एमसीटी चौका 4 रन के लिए। आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी। चक्को चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी। घुमा दे बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। मोहित गांवकर की पहली गेंद के ऊपर चौका निकला और स्कोर रुका है 71 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। छोटा सा रन अप और राइट हैंड और द विकेट। शफल होकर खेलने की कोशिश ढूंढ के निकल, लेकिन यहाँ पर गली में खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। एक अच्छी कोशिश थी इस गेंद के ऊपर उठाने की, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। दबका 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 72 रन स्कोरबोर्ड पर, 72 लॉस ऑफ 8 विकेट्स, जो 8वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंदबाजी, काफी खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे। ललचा है बल्लेबाज के लिए, जो कि शादी में इनविटेशन कार्ड दे के बुलाया जाता है, लेकिन क्रिकेट की बाहरी भाषा में आंखों इशारा किया बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे उठाने की, लेकिन सही साबित नहीं हुए। यहाँ पर पैरों के ऊपर डाली हुई गेंद को हल्के हाथ से खेला। मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ 73 रन स्कोरबोर्ड पर। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन बीच का एक बेहतरीन स्पेल अमीर गड़े करके, उसी के साथ 7वां ओवर प्रणल सावन का एक बेहतरीन क्रिकेट। और भी डिले मौका बन रहा था इस गेंद के ऊपर उठाने की कोशिश, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत मोहित गांवकर ने इस मैदान से की थी। और जरूर बता रहे हैं मेरे ख्याल से अखिल जी परब, एक बेहतरीन कंप्यूटर स्कोरर। अखिल के मेरे ख्याल बता रहे हैं क्रिकेट की शुरुआत तो ओवरसीज है, लेकिन आज काफी अनुभव के साथ बल्लेबाजी होनी चाहिए, खासतौर से स्ट्राइक पर बल्लेबाज। बल्ले का अंदरूनी किनारा बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है 38 सर्कल में, और एक विकेट निकलता हुआ। विकेट नंबर 9वां, और 9 विकेट के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 8 ओवर के बाद स्कोर रुक चुका है 73 रन स्कोरबोर्ड पर। 74 रन का टारगेट है सामने। 8 ओवर का मैच है। 8 ओवर के बाद देखा सकते तो 8 ओवर खेलते हुए कुल मिला के 9 विकेटों के नुकसान पर 73 रन जुड़ चुके हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो अंकुर सिर ने यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत की थी। शुरुआत का पहला ओवर काफी महंगा रह चुका था, जो 14 रन। दूसरा ओवर प्रणल सावन का, अच्छी गेंदबाजी प्रणल सावन की, 14 रन, एक विकेट। Last call goes to captain of Malwan and the team and the captain of Kuda as well. शेवटचा पुकार आहे, जरा रिपोर्ट करायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. कॅप्टन ऑफ मालवण अँड कॅप्टन ऑफ कुडाळ. तो खासतौर से प्रणल ने बेहतरीन प्रभावित किया इस मैच के। समीर जी, इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो 5 विकेटें लेने वाला तीसरा यहाँ पर खिलाड़ी देखा। पहले दिन के लिए अपाली कलंगुटकर, अमीर सालगांवकर, और आज के तीसरे दिन के पहले मुकाबले में प्रणल सावन। और विकेट हैट्रिक की बात की जाए तो कल के दिन के लिए एक हैट्रिक हुई, आज के दिन की दूसरी हैट्रिक। तो बेहतरीन क्रिकेट। 74 रन का टारगेट है, 8 ओवर का मैच, 8 ओवर में 74 रन का टारगेट। और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ जाते हैं एक बेहतरीन मराठी कमेंटेटर मिस्टर सर समीर पांढरे। Entire team of team owner क्विकली विनंती असेल आई माऊली कुडाळ या संघाला, त्यांनी आपले सारे खेळगडी घेऊन एका फोटोसाठी यावं.
तिसऱ्या दिवसाच्या शुभारंभाची लढत ही गणपती वॉरियर्स फोंडा गोवा या संघाविरुद्ध घुमटेश्वर मडगाव सालसेट या दोन संघादरम्यान होताना दिसतंय. नाणेफेकीचा महत्वपूर्ण कौल गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघानं जिंकला. खेळपट्टीचा अंदाज घ्यावा या अनुषंगानं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. वेगवान गोलंदाजीच्या समोर पुरता डाव कोलमडला आणि 74 धावांपर्यंत मजल मारतोय. तो सालसेट संघ 74 धावांचं विजयी लक्ष्य नजरेसमोर ठेवून गणपती वॉरियर्स फोंडा गोवा संघ मैदानावर येतोय. डावकुराचा जगत सरकार तर त्याचा सातला प्रथमेश ही सलामीची बिनीची चोरी मैदानावरनं. जगत सरकार याच्याबाबत सांगायचं झाल्यास एक आयकॉन असा खेळाडू, चेंडू सरळ मधल्या यष्टीवरचा, यष्ट्यांच्या मधोमध जगत सरकार सापडतोय. कोणतीही संधी परत येण्याची न मिळाल्याने या ठिकाणी पायचीतच्या स्वरूपात जगतला डावातील पहिल्या चेंडूवर माघारी हे परतावं लागतंय. टॉस पण करूया. दोन्ही संघांना विनंती असेल फोटो सेशनसाठी यावं. भाव्यान स्पोर्ट्स, साईश 11 मालवण आणि आई माऊली कुडाळ. सुरेख अशी गोलंदाजी या ठिकाणी गुरुशंत याच्याकडनं आपण पाहतोय. कालच्या दिवशी आपण चर्चा केली होती. गोव्याचा अनुभवी खेळाडू रोहन साळगावकर याची गेली 2 दशकं क्रिकेटची अविरत सेवा करताना त्याच वेगाने आजही तो अचूकतेनं गोलंदाजी करतोय आणि त्याच्याच उमटलेल्या पावलावर पाऊल ठेवून गेली 10 ते 15 वर्ष क्रिकेटची जो अविरतपणे सेवा करतोय. आपल्या संघाच्या विजयासाठी नेहमी सातत्यपूर्ण योगदान ज्याचं असतं तो गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघाविरुद्ध खेळणारा अर्थातच या ठिकाणी गोलंदाज हा सालसेट संघाकडनं गुरुशंत एक प्रतिभाशाली कामगिरी करत पहिल्या चेंडूवर पायचीतच्या स्वरूपात जगत सरकारला माघारी परतवतोय. नवीन फलंदाज अमीर गडेकर याची वर्णी मैदानावर लागते. उंच पुरा असा खेळाडू साथ द्यावी लागेल अमीरला. प्रथमेशची मैदानावर पहिल्या चेंडूवर खराब अशी सुरुवात, खातही न खोलता, भोपळा न फोडता एका सुरेख चेंडूवर पायचीतच्या स्वरूपात जगत सरकार माघारी. यावेळी योग्य सन्मान दिला जातोय. चेंडूला हलकीच दिशा दिली जाते. ते एक्स्ट्रा कव्हरला एकेरी धावेने अमीर स्वतःचं खातं हे खोलतोय. पहिला चेंडू या तऱ्हेनं ऑन टार्गेट पद्धतीनं येईल याची यत्किंचितही कल्पना या ठिकाणी नव्हती जगत सरकारला. चेंडू कोणतीही संधी न येता वेगाने चकित करत सरळ पायावर आदळला जातोय. मधल्या यष्टीच्या समोर जगत सरकार आणि त्यामुळे पायचीतच्या स्वरूपात तो माघारी जातोय. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 धाव फलकावर एका कार्याच्या मोबदल्यात. पहिला गडी स्वस्तात तंबूमध्ये परतलाय. सुरेख अशी सुरुवात झाली आहे आणि त्या सुरेख अशा सुरुवातीच्या जोरावर गोलंदाज गुरुशंत सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू प्रथमतः इरादा होता मोठ्या फटक्याचा, त्यानंतर बॅकफुटला जातोय. मनगटी फटक्यानं चेंडू हलकेच वळवतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एकेर धाव पूर्णत्वास नेली जाते. एकेर धावेने या ठिकाणी खातं खोललं जातंय. हे अर्थातच या ठिकाणी प्रथमेश या फलंदाजाचं पर्यायानं 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 2 धावा एका कार्याच्या मोबदल्यात 74 या विजयी उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना गुरुशंत गोलंदाज सज्ज. आखूड टप्प्याचा काहीसा धीम्या गतीचा चेंडू, चेंडूला पारखलं जातंय. त्यानंतर हलकीच दिशा दिली जाते. चेंडूला दिशा दिल्या क्षणी एकेरी धावेचा प्रयत्न अमीर करतोय. मात्र दुसऱ्या बाजूनं प्रथमेशकडनं त्याला स्पष्ट असा नकार. पर्यायानं हा ना करत अखेर निर्धाव चेंडूवर समाधान मानावं लागतंय. चेंडू निर्धाव काढला जातोय. 2 धावा या धाव फलकावर 4 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज. गुरुशंत पंचांच्या डाव्या हाताकडनं सुरेख असा फटका या ठिकाणी टोलविला जातोय. पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न अपुरे पडतायत. डीप कव्हर पॉईंटवरनं क्षेत्ररक्षकाला कसरत करावी लागते. क्षेत्ररक्षक बादल आपल्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडू अडवतोय. चेंडूची परती गोलंदाज गुरुशंतच्या दिशेने होतोय. व एका विश्वसनीय फटक्याच्या जोरावर अमीरला मिळत आहेत त्या 2 धावा ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय. तो 4 धावा 5 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज. अंकुर सिंग नवीन फलंदाज या ठिकाणी माफ करा.
याही वेळी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न या ठिकाणी पूर्णपणे असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडू अखेर सफलता प्राप्त करणारं नाममात्र 4 धावा खर्च करणारं 74 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकातच गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना विचार मंथन करण्यास प्रवृत्त करणारं असं षटक हे गुरुशंत याच्याकरवी समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त 4 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजीमध्ये बदल होईल यात कोणतीही शंका नाही. पाहायचं आहे कोण गोलंदाज सज्ज होतोय तो. गोलंदाज बहुधा वीरू वाघेला याच्या हाती चेंडू सुपूर्द केला जातोय असं चित्र या ठिकाणी व्यक्त होतंय. वीरू वाघेला वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक महत्वपूर्ण दुसरं षटक फेकण्यासाठी समालोचन कक्षाच्या एंडकडनं कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं किंवा ज्याला पॅव्हेलियन एंड आपण म्हणतो त्या दिशेवरनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. व स्ट्राईकला अर्थातच फलंदाज असेल तो प्रथमेश, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज अंकुर सिंग. ओव्हरसीज असा खेळाडू खास उत्तर प्रदेशवरनं आपल्या उपस्थितीची नोंद तो देतोय. आपल्या अष्टपैलू खेळाच्या जोरावर त्यानं अनेक मैदानं ही गाजवली आहेत. तो अंकुर सिंग नॉन स्ट्राईकला. वाकेला गोलंदाज ज्या वेगाने चेंडू आला फटका टोलविला जातोय. फटक्या मागे ताकद काहीशी अपुरी पडते. सीमारेषेवर झेल टिपण्याचा प्रयत्न हा सुरेखरित्या या ठिकाणी बादल याचा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सीमारेषेच्या अलगत या ठिकाणी झटापट होते ती चेंडू व क्षेत्ररक्षक यांच्या दरम्यामध्ये. मात्र नक्की काय घडतंय यावर खातरजमा करण्यासाठी पंच रुपेश गवस तिसऱ्या पंचांची मदत ही घेत आहेत. मैदानावर पहा नक्की काय घडलं. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू होता. फटका मारण्याजोगा चेंडू होता. आपले हात खोलले ते फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी प्रथमेशने मोठा फटका मिड विकेटच्या दिशेने टोलविला. चेंडू सीमारेषेला निमंत्रण देत होता. जवळपास सीमारेषेचा अलगत होता. मात्र छोट्या चणीचा का होईना बादल या ठिकाणी अथक प्रयत्न करतोय आणि या प्रयत्नामध्ये चेंडू षटकारापासून रोखला गेलाय की षटकार गेलाय याची निश्चिती करण्यासाठी तिसरे पंच हे खातरजमा मैदानावर करतायत. थँक्यू समीर. एक जे आमचे प्रेक्षक किंवा जे सपोर्टर टीम बरोबर आलेले आहेत त्यांना बसण्यासाठी आपण स्टँड केलेलं आहे. फक्त प्लेयरच आतमध्ये यायचं मेन गेटमधनं. बाकी जे सपोर्टर आहेत त्यांनी प्लीज स्टेज जे आपल्याला स्टँड केलं त्या स्टँड जाऊन बसायचं आहे. थँक्यू. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय या ठिकाणी येतोय. बादल नाईक अतिशय सुरेख असं क्षेत्ररक्षण करून आपल्या संघासाठी बहुमूल्य 5 धावा रोखतोय आणि प्रत्येक धावाचं महत्व या ठिकाणी सादर करताना आपल्या संघाचा हुरूप हा वाढवताना दिसतोय. क्षेत्ररक्षक रोजनेत परत एकदा फेरबदल आपण पाहतोय. डीप लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक हा मिडॉनच्या दिशेनं या ठिकाणी तैनात. एक डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक व एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक. पहिला गोलंदाज विरुद्धच्या शरीरापासून काहीशा दूरवरनं फटका अंकुर खेळतोय. फटका टोलवता क्षणी एकेर धाव घेण्याचा त्याचा मानस. थोडीशी ढिलाई क्षेत्ररक्षक रोजनेत. पर्यायानं जी धाव काहीशी धोकादायक ठरू शकली असती त्या ठिकाणी एक साधी सोपी धाव हे अंकुर याच्या खाती प्राप्त होते. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 6 धावांवर. सहा धावा या धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका संपर्क झालाय. ध्वनी निनादलाय. चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी होतोय. यावर शिक्कामोर्तब होतोय व या डावातील पहिला मोठा फटका षटकाराच्या स्वरूपात टोलवण्याचा बहुमान हा फलंदाज प्रथमेश याला पाहत होतोय. 74 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पॉवर प्लेमध्ये काहीशी खराब सुरुवात झाली आहे आणि खराब अशा सुरुवातीनंतर जर आत्मविश्वास वाढवायचा असेल, पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा करायचा असेल तर एखाद दुसरा मोठा फटका अति आवश्यक हे प्रथमच जाणतोय.
याही वेळी मोठा फटका, चेंडूचा प्रवास लॉंग ऑनच्या दिशेने सलग दुसऱ्या वेळी सीमोल्लंघन होत आहे आणि आपण जो टाळ्यांचा कडकडाट ऐकतायत त्या शांत अशा सुरुवातीनंतर दोन वादळी फटक्यांसाठी जे वादळी मोठे फटके षटकाराच्या स्वरूपात प्रथमेश नाईक याच्या मार्फत आपण पाहतोय. 6 धावांनी धावफलक बदलतोय 18 धावांवर. विजयी उद्दिष्ट 74 धावांचं पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर सफलता. पहिल्या षटकामध्ये धावा कंजूशी केवळ 4 खर्च केल्या त्या गुरुशतने. त्यानंतर मात्र आतापर्यंत गुरु याच्या कामगिरीनंतर या ठिकाणी गोलंदाज वीरू वाघेला हा 14 धावा 4 चेंडूंवर खर्च करतोय. आकृता टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जातोय, फटक्यासाठी जागा करतोय. त्यानंतर फटक्याची छान निवड करत चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने टोलविलं जात आहे. मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर वरनं क्षेत्ररक्षक कदम याची दिनेश कदम याची सुरेख अशी रणनीती, सुरेख असं क्षेत्ररक्षण नामं मात्र एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय व या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 19 धावांवर. तब्बल 15 धावा या षटकामध्ये निघतायत. काहीशा महागड्या अशा षटकाची यशस्वी सांगता करावी या उद्देशानं गोलंदाज वीरू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर व त्याचे मनसुबे उधळण्याच्या प्रयत्नात अंकुर सिंग हा फलंदाज स्ट्राईकला. स्विच हिटचा प्रयत्न झाला होता, प्रयत्न तर सुरेख होता, मात्र प्रयत्नांना सफलता. Day 3, match 2. I Mauli Kudal to take on Bhavyan Sports Saish 11 Malvan. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल नाणेफेकीसाठी यावं. लगेचच आपण नाणेफेकी करून बॉल सिलेक्ट करायला तुम्हाला परत पाठवतो. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी एक वेगवान गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती तो सालसेट गोवा क्रिकेट संघाचा संकेत याची वर्णी ही लागते. सुरुवातीच्या 2 षटकांमध्ये धावा झाल्यात त्या 19 पॉवर प्लेची नियमावली संपुष्टात येते. क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना विखुरलेली आपण पाहतोय. एक डीप लॉंग ऑफ, एक डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग आणि त्यानंतर एक डीप कव्हर पॉइंट असे क्षेत्ररक्षक. फुल टॉस मध्ये चेंडू खराब असा चेंडू, पंचांचा इशारा नो बॉलचा तर येतोय. गडी बाद करण्याची संधी निर्माण झाली होती, मात्र तत्पूर्वी नो बॉलचा इशारा येतोय पंचांकडनं. त्यामुळे फलंदाजाला विशेष काही इजा होणार नाही, तर हानी मात्र निश्चितपणे गोलंदाजाला व गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला होईल एवढं मात्र नक्कीच. कारण फ्री हिट चा इशारा झालाय म्हणजे नो बॉल येताना एकटा आला नाहीये, तर फ्री हिटची सुसंधी फलंदाजांसाठी निर्माण करण्यासाठी तो फ्री हिटचा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज अर्थातच या ठिकाणी संकेत याची गोलंदाजी वर्णी लागते. परत एकदा संकेत राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. 21 धावा धावफलकावर. यावेळी फ्री हिटच्या चेंडूवर करा प्रहार केला जातोय. चेंडूचा प्रवास स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चेंडू टिपला जरी गेला तरी विशेष नुकसान होत नाहीये. एकेरी धाव अंकुरच्या खाती प्राप्त होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. 22 धावा धावफलकावर गडी बाद होतोय तो एक. जगत सरकार सुरुवातीच्या चेंडूवर पायचीच्या स्वरूपात तंबूमध्ये परतला आणि त्यानंतर मात्र 74 धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीच्या दडपणाला हाताळताना एका छोटेखानी भागीदारीची गरज होती. आक्रमकता व संयमता यांच्या मिलाफानं ती सांघिक जबाबदारी आपल्या खांदी घेत या ठिकाणी अंकुर सिंग व प्रथमेश ही जोडगोळी किल्ला लढवतोय. आपल्या संघाला मजल दर मजल करत 74 या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न या मैदानावर ही जोडगोळी करताना दिसते. संकेत सज्ज उजव्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू. यावेळी टप्प्यावर नियंत्रण न होतं. जरी वेग अचूकतेनं राखला असला तरी दिशा ही अतिशय खराब होती. पर्यायानं अनुभवी असे पंच योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर यांचा इशारा स्क्वेअर चेंडूचा व या एकेरी अवांतर धावेने धावफलक
बदलतोय, धावफलक स्थिरावतोय, तो अर्थातच नाणेफेकीसाठी आपण तयार आहोत. संजूबाई नागवेकर तसेच आमचे दोन्ही कर्णधार आई माऊली कुडाळ यांच्याकडून सोहेल शेख आणि दंशन बांधणेकर, भाव्यान स्पोर्ट्स साईश 11 मालवण. Tails is the call and it is tails. किती करता पहिली फिल्डिंग फिल्डिंग कशासाठी तुम्ही फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला? पहिलीच मॅच आहे, ग्राउंडचा अंदाज वगैरे याच्यासाठी पहिली फिल्डिंग घेतोय आम्ही. किती टार्गेट तुम्ही चेस करणार आहात त्या तुमच्या बॉलिंगप्रमाणे? 70-80 ते थांबवायला बघू. ऑल द बेस्ट. पहिली फलंदाजी करावी आहे. किती टार्गेट तुम्ही ठेवणार आहात? भाव्यान स्पोर्ट्स एक स्ट्रॉंग टीम आहे तुमच्या पुढे, ती पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खूप वेळा तुम्ही एक दुसऱ्याबरोबर खेळतात, त्यांचे विकनेस त्यांची स्ट्रेंथ्स सगळे तुम्हाला माहीत असणार. आम्ही 70-80 पर्यंत रन्स करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. ऑल द बेस्ट कॅप्टन. थँक्यू. दॅट्स द न्यूज फ्रॉम द सेंटर. दर्शन बांदेकर अँड को. दॅट इज द Bhavan Sports Saish 11 Malvan have won the toss and they have decided to bowl first. परत एकदा मैदानावर जाऊया. या ठिकाणी गोलंदाजी करताना गोलंदाज संकेत गोलंदाजी मार्कवर एकेरी धाव अंकुरच्या खाती, ज्या एकेरी धावेने सांघिक पावशतक हे पूर्णत्वास येते, म्हणजे 25 धावा एका करायच्या मोबदल्यात. डावातील तिसरं षटक प्रगतीपथावर 74 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 2 षटकार आतापर्यंत या डावामध्ये आपण पाहतोय आणि त्या 2 षटकारांचा अपवाद वगळता मात्र एकेरी दुहेरी धावांवर भर दिलेला आपण या डावामध्ये गणपती वॉरियर्स संघाकडनं पाहतोय. वाईड यॉर्कर पद्धतीने चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न, अक्षरशः चेंडूचा पाठलाग केला जातोय, चेंडूला पाठवला जात आहे, ते डीप लॉंग ऑफला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये चेंडू अडविण्यात झालेली झटापट मात्र अखेर या ठिकाणी यशस्वीता प्राप्त होते. लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाला क्षेत्ररक्षक दिलीप चेंडू अडवतोय. 2 धावा तर निघतायत. 2 धावा सहजगत्या या ठिकाणी मिळत आहेत त्या प्रथमेश याच्या खाती, ज्या दुहेरी धावानं धावफलक वधारतोय तो 27 धावांवर. 27 धावा एक गडी बाद. तिसरं षटक प्रगतीपथावर बहुधा तिसऱ्या षटकाच्या सांगतेचा हा चेंडू असावा असा कयास वर्तवला जातोय. गोलंदाज संकेत आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. ओव्हरपेज पद्धतीचा चेंडू, बाहू खोलले जात आहेत. ज्या वेगानं चेंडू आला त्याच्या दुप्पट वेगानं प्रथमेश सीमारेषा पार करतोय. डीप मिड विकेट. यशस्वी अशी षटकाची सांगता तिसऱ्या ही होते गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं. प्रति षटकामागे 11 धावांची धावगती राखत तब्बल 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 74 धावांचा पाठलाग करताना. सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये पहिल्या चेंडूचा अपवाद वगळता सर्व काही ठीकठाक, सर्व काही आलबेल चाललंय गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. मात्र या सामन्यामध्ये पुनरागमन करण्याची एखादी संधी, एखादी उपलब्धता अति आवश्यक असेल सालसेट क्रिकेट संघाला, ती संधी कुणा गोलंदाजाच्या मार्फत मिळते हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय, आवाजामध्ये बदल होतोय व गेले 2 दिवस आपल्या आवाजानं हिंदी व मराठी भाषेच्या आपल्या प्रभुत्वाच्या जोरावर क्रिकेट रसिकांच्या मनामध्ये ज्याने आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलंय असे आमचे जवळचे मित्र प्रशांत आदवडीकर यांच्याकडे मी माईक सुपूर्द करतोय व काही क्षणापुरती या मैदानावरनं आपली रजा घेतोय. ओव्हर टू सर प्रशांत जी. थैंक यू सो मच समीर जी. बिल्कुल आपकी आवाज़ बहुत मीठी है और दर्शक सुन रहे थे और दर्शकों को मज़ा भी आ रहा है.
मैच देखने का मौका मिलेगा। गणपति बारिया सर, गुमटेश्वर, दो टीमें मैदान के अंदर है। अंकुर सिंह, जगत सरकार। जगत सरकार का विकेट लिया गया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में रही है। गेंदबाज गुरुशांत ने शांत किया था जगत सरकार को। पहली गेंद पर लेग बिगर का विकेट इनको मिला था। हवा में गेंद है इस बार। पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। बादल गेंद की तरफ आ रहे हैं। एक रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलट गए हैं। दिलीप बिजवा को इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। कमाल का प्रदर्शन इनका रहा है ओपन टेनिस क्रिकेट में ऑल इंडिया लेवल पर। लेकिन यहाँ विकेट की तलाश, क्योंकि माहौल बनाया दिलीप बिजवा के लिए। आज भरत दाभोलकर ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। इस ओवर में केवल 2 रन आए हैं। हवा में उठाया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर गेंद के नीचे, और गुरुशांत ने शानदार कैच। अंकुर सिंह बैक टू द पेबल। दिलीप बिजवा ने विकेट लिया है। कहानी इंटरेस्टिंग है। तो शाम कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। क्या प्लानिंग होगा इसके बारे में बिल्कुल बहुत सारी चर्चा होगी, और ये कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। दिसता तुका ह्या सिच्युएशनांसून खंयच्या प्लेयरांचेर तुजी गेम आसा? कित्याक मोहित आत्तां गेला बॅटिंगेक. ना चड स्कोर ना न्ही, आनी आमचे कडेन प्लेयर तशे भरपूर आसा, म्हणजे सगळे बॅटिंग करूं शकता. जस्ट एक 5 सिक्सरीचो खेळ आसा. 24 बॉलांक 5 सिक्सरी जाय फक्त. येद्या व्हडल्या टुर्नामेंटान 10 लाखाचो टुर्नामेंट, व्हडले व्हडले प्लेयर आसात सगळ्या टिमींनी. कसो कितें एक्सपिरियन्स आहा, कसो कितें एटमॉस्फियर संजू भाई आनी महेश भाईन क्रिएट करून दिला सगळ्या ओनरांक? म्हाका बाबूची याद येयली. ते झाले की फक्त 5 सिक्सर जाय, 5 10 करून मारो म्हणून. म्हाका याद येयली लाईट बॉलाचो राहून सांगतालो पयलीं. 5 करून फक्त 10 सिक्सर 50 करून बाबा तसो उलयलो बाबू. सारकें संजू, पण आमकां ते पयलींच्यान संवयच जाल्ली आसा. 5 शॉट मार जिखता मैच. शुक्रिया बाबू। टप्पा खाते थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद अलका से गेंद को खेल दिया है। भरत ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन देने का मौका है। सिंगल के साथ आंकड़े बदलते हुए बाबूजी बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। शाम और एक सवाल के लिए आप पूछ सकते हैं। तेच विचारतलो हांव तुमकां की एक्सपिरियन्स कसो कितें आसा, कित्याक लास्ट 2 आमी दीस पळयले, राती पळयल्यो, 2 गोंयच्यो टिमी पावल्यो, आयज 2 सिंधुदुर्गांतल्यो टिमी आसात तुमच्या वांगडा खेळटल्यो. पयले गेमीचेर कितकें डिपेंड करता की पयले गेम जिखोन तुमी फुडें कशी कितें तुमची वाटचाल करतली ह्या टुर्नामेंटाक? ना, पयली मॅच सगळ्या टुर्नामेंटाक पयली मॅच इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक पयली मॅच जिखतकीर मागीर कॉन्फिडन्स येता, आनी फुडले मॅचीक बरो कॉन्फिडन्स येवन बरे खेळ जाता. ओ टू कम बॉक्स. शुक्रिया श्याम, शुक्रिया श्याम और बाबू, थैंक यू सो मच। इस वक्त बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात थे। दिनेश कदम जिन्होंने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, क्योंकि इस गेंद को या तो कैच करना था या तो रोकना था। तो 2 विकल्प आपके पास थे। बॉडी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया दिनेश ने, और इम्पोर्टेंट मैच है। मैजिक कोनाटकर साहब इस टूर्नामेंट के आयोजन करता। दिलीप बिजवा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स स्वीप, बाबा में गेंद, भरत बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ, यहाँ मौका बन सकता है, और काम किया बिजवा साहब ने, काम किया। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाएंगे मोहित गांवकर, और 1 विकेट गिरने के बाद देखिए किस तरह से विकेट जो है ना लगातार गुच्छे में आ रहे हैं। रनआउट का विकेट, अंकुर सिंह का विकेट गिरने के बाद अब कहानी और इंटरेस्टिंग बनती हुई। इस ओवर की बात करो तो दिलीप बिजवा ने शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद पर वो डबल था, उसके बाद में विकेट, उसके बाद में एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। भरत का जो ओवर था वो कमाल का था, म्हणजे दगड फुटला, सगळ्यांनी पाहिला, पण पहिला घाव भरत दाभोळकरने घातला होता, आणि त्यामुळे त्याचा फायदा दिलीपने मिळाला। दिलीपने देखील जबरदस्त कामगिरी केली। 19 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। शाम हमारे साथ जुड़ेंगे कम बॉक्स में, बहुत मजा आएगा। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर देखने का मौका मिलेगा। और दोपहर के सत्र में दर्शक भी काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3:06 का समय, और तीसरे दिन का बहुत महत्वपूर्ण ये पहला मुकाबला। गुमटेश्वर बनाम गणपति बारियस, और मैदान के अंदर चंदन नायक, चंदन दे दनादन नायक मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं।
अब जाकर चंदन एक एंड पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ प्रथमेश का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। सेट बल्लेबाज है, 3 छक्के जड़ चुके हैं और उनके पास वो काबिलियत है। शानदार मैच होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कल रात के समय में 3 मुकाबले पैसा वसूल हुए थे और दर्शक भी काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे। कल 4,78,000 दर्शकों ने tenniscricket.in पर रोचक मुकाबले का लुत्फ उठाया था। ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी दिनेश पहले बैठ गए थे, इसके कारण यह कैच नहीं हुआ। बॉडी का बैलेंस इन्होंने खो दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और शानदार खेल देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल 18 गेंदों का खिलाना बाकी है और जीतने के लिए फिलहाल यहां से और 33 रनों की जरूरत है। श्याम हमारे साथ जुड़ेंगे। Yes, 33 more required in 3 overs. 11 runs per over, the asking rate right now. Prashant sir, you talked about the pressure that being mounted right now and that excellent over from Dilip Bijwa. 5 runs and just 1 wicket, and that 1 wicket has completely changed the game. Before that, Varad Dabolkar came in, just gave 2 runs. So how crucial these overs are, Varad as well as Dilip. MC pressure that he built, and that pressure was certainly mounting on the batsman, got the wicket, and now this is a complete different ball game. 3 overs requiring 33. As the team owner explained that they have got a lot of firepower in the arsenal. Let's see who fires. But it will be tough as this man can spin the ball both ways. We've seen him doing some magic with the ball. He's the magician in Goa. जी हाँ, ये जादूगर है और दोनों तरफ गेंदों को घुमाने की ताकत रखते हैं और गेम चेंजर खिलाड़ी। सबसे बड़ी बात है, आपके पास खिलाड़ी बहुत है लेकिन हमें खिलाड़ी नहीं, हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए। तो गेम चेंजर मैदान के अंदर और मौका मिलेगा प्रथमेश के लिए, वो भी कमाल के खिलाड़ी। चंदन के पास भी काबिलियत है। एमसीटी ओवर सारे खिलाड़ी दारी के अंदर है। इस पर फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर मिड ऑन है, मिड विकेट स्क्वायर लेके और एक फाइन लेग, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी। वरद अपनी बोरिंग मार पर तैयार। इस बार स्वीप किया बहुत खूबसूरती के साथ, पीछा कर रहे, गेंद नहीं रुकने वाली है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार एमसीटी 4। Yes, excellent bit of work. Just shuffled across and he played it fine for the boundary. Gets the boundary on the very first delivery, requiring another 29 now. 29 in 11 deliveries. 17 deliveries requiring 29. पहली गेंद पर जब शाम चौकाता है ना तो बिल्कुल बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रथमेश सेट बल्लेबाज है, आके जम चुकी है। वरद दाभोलकर की और ये खासियत है, बतौर गेंदबाज बहुत बार बेस बॉलर का अवार्ड वो ले चुके हैं। स्ट्राइक रेंज पर प्रथमेश। इस ओवर की अगली गेंद इस बार हवा में उछला, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, क्या ये कैच हो जाएगा? देखने वाली बात है। गेंद बॉडी की तरफ 6 रन। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक और ये एफर्टलेस शॉट था लॉन्ग ऑफ बॉडी की तरफ। सिक्सर। Yes, gone through with that shot. Okay, DJ. Catch down to Dinesh Kadam could be very decisive. The catch dropping and now requiring another 23 in 16 deliveries. 16 deliveries requiring 23. Boundary of the first, then a maximum. ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है। ये तो झांकी है, असली भी चिराना बाकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी प्रथमेश द्वारा। इस बार ऑन साइड पर अक्रॉस खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील विकेट के पर बॉलर ने जरूर किया लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेग बाय का इशारा किया गया। अब जाकर आंकड़े क्या बता रही, इंपॉर्टेंट मैच है और जीतने के लिए टारगेट 74 रनों का है। ये बहुत अच्छी गेम थी, ज्यादा अक्रॉस चले गए थे, इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए। That ball was spinning away from the right hander. Prathamesh shuffling across.
चंदन गेंद ऑन सेट पर खेलना तो चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए, अब गेंद थी गेंदबाज द्वारा। चंदन दे दनादर बल्लेबाजी करते, लेकिन भरत भी कुछ कम नहीं, एक अच्छा बैटर देखने का मौका मिलेगा। Yes, truly. Gone for a boundary, then a maximum, then a single. These two deliveries are very crucial as far as this MCTO is concerned for Margao. That's up in the air. And that's taken. That's the wicket they were looking for. Chandan Naik departs. And some more pressure falls on the set batter. नरेश ने बहुत बढ़िया कैच लिया, भरत ने बदला लिया, क्योंकि पहली दो गेंदों पर एक चौका और छक्का है, तो उसके बाद में देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है भरत दाभोलकर की। और ये कैसे खिलाड़ी कमबैक करना जानते हैं, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। जिस तरह से ये कमबैक किया गया, ये मैं समझ सकता हूँ वेलकम बैक है, मजा आएगा। ये मैच और रोचक बनने वाला है। प्रतियोगिता का जो फर्स्ट प्राइस है 10 लाख, जिसमें महेश कोनाटकर साहब का भी योगदान बहुत बड़ा है। और वेल विशेस, थैंक यू सो मच। शानू फर्नांडिस, किरण सावंत, सारे जो हमारे स्पॉन्सर है, इनका भी हम शुक्र अदा करना चाहेंगे। भरत दाभोलकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा कमबैक किया है। Yes, truly, he has come back really good. Now another explosive batter comes in. Ajay Halgekar. He can go after the bowling from ball 1. That would be the ask. I see only the Gumteshwar Margao winning from here by picking up wickets and creating some more doubts in the mind of the batters. बिल्कुल सही। और लेग ब्रेक गेंद मिड स्टंप से थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ आई है। क्या वेरिएशन है गेंदबाज का। भरत दाभोलकर कमाल का काम कर रहे, और बल्लेबाज रन आउट हो गए हैं, जिनके बारे में अब चर्चा कर रहे थे, विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन आज जादूगर ने कमाल कर दिया। पहले 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक, और उसके बाद में अब कहानी देखिए, 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, हमारा टाइटल सॉन्ग हम सुनेंगे और शाम के साथ चर्चा जारी रहेगी। पहले ओवर में केवल 2 रन देते, दूसरे ओवर में 10 रन, लेकिन इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते। एक शिकार आपने किया, अब जाकर स्कोर कुल मिलाकर 52। 12 गेंदों में 22 चाहिए। कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है, रोचक मुकाबला, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा, मजा आएगा। शाम ये का जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर दोपहर के सत्र में। Absolutely. Talking about the situation right now, the game is evenly poised. 22 required in 2 overs. It was requiring 33 in the last 3. Now requiring 22. 11 came from that over. But now all the pressure lies on this man who is on your screen. Prathamesh. His partner who has come in, Anand Patil. Anand Patil is also a go-to player in this crunch situation. A clutch. Let's see. These two can provide that clutch for Ponda. That's whacked. And that's into the hands. Oh, gone down. How crucial that would be. Viru Waghela dropping that catch. Prashant sir, what are your views on this drop chance? आपने कैच ड्रॉप किया या मैच ड्रॉप किया, मतलब ये कैच छोड़ा या मैच छोड़ा, जिस तरह से रनिंग कैसा आसान तो नहीं है, लेकिन इस वक्त विकेट की सख्त जरूरत है। गेंदबाज ने आपके लिए वो खुशहाल लेके आए थे, लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी मैदान के अंदर है, वीरू वाघेला, इन्होंने कैच छोड़ा है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, मंत्र आपको नहीं भूलना है। दिलीप अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार है। फिलहाल इंटरेस्टिंग मुकाबला बीच मैदान पर, जबरदस्त कॉन्टेस्ट, अच्छा बैटल। हवा में गेंद है, इस बार पीछे खिलाड़ी है, वीरू ने छोड़ दिया, लेकिन विराट नहीं छोड़ने वाले हैं, और विकेट गिर गया। कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी रोचक है। टाइटल सॉन्ग के बाद शाम के साथ चर्चा जा रही है। आइए डीजे मास्टर। आओ खेले आज जम के रहे न कुछ भी बाकी, चक्को चौको की
बौछारे या गिर जाए डंडी, अरे चक्के चौकों की बौछारे या गिर जाए डंडी। माटी बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला, माटी बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला। आई 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 अपनी मांदे चैंपियंस ट्रॉफी। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमसीटी बार ट्रॉफी बार 2025 सीजन 7। अमीर मैदान के अंदर आए हैं, अमीर घड़ेकर, और इस वक्त विजय खास करके दिलीप बिजवा के लिए अपने जीत के लिए वह विकेट की वो सख्त जरूरत थी, वो विकेट मिला है। कुरुशुर मुकाबला फील्डिंग के जवाबत आप देख सकते हैं। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप बाय गली पर खिलाड़ी पॉइंट स्ट्रक अब। ओ वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी। 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 3 maximums required to finish off the game. That's the easier said than done. Someone should hit them. These two are very much capable of hitting them. Let's hope that these two hit it and the owner gets a smile back on his face. जी हाँ, जिस तरह से बाबू साहब ने कहा था, टप्पा खाते उच्चार मिला, इस गेंद को टैप किया गया। स्ट्रक कवर पर खिलाड़ी है संकेत, गेंद को फील्ड जरूर करेंगे और इस सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। और आपने सही एक बार फिर फरमाया कि बाबू ने कहा था 5 आपको छक्के जडणे हैं, फक्त 5 मारायचे आहेत असं तो बोलून गेलेला आहे, परंतु मैदानावरती छान मॅच रंगलाय. And definitely it has. The set batter in, and this set batter needs to take them home. He goes down the ground in the air, and that's gone over him. That's a boundary, fortuitous boundary as far as the chances of Ponda are concerned in this game. Gets it at the very right occasion. Prathamesh Naik is stealing the show right now. 4 maximums, 2 boundaries. 58 for 6, needing 16 in 7. What a match! कमाल का मुकाबला है. दिलीप एक बार फिर अपने बोलिंग माप बदल गया. प्रथमेश शानदार पारी खेल रहे. 7 गेंदों का खेल, 16 रनों की जरूरत. इस बार ज्यादा क्रॉस चले गए थे. ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई. लेकिन अच्छी बात क्या है, बल्लेबाज प्रथमेश जो सेट बल्लेबाज है वो स्ट्राइकरिंग की तरफ आएंगे. 6 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है. हमारे संदीप डीजे मास्टर हमारे से जुड़ेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे आखिरी 6 गेंदों की अद्भुत कहानी. रही है. अब आपके पास 6 गेंदें हैं और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत. अखिल जब हमारे साथ होते तो कमेंट्री करने के लिए कुछ अलग मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल जानकारी वो आपके लिए देते हैं. लेकिन शाम क्या बल्लेबाज करेंगे अपना काम और इस मैच में बनाएंगे अपना नाम. आपको क्या लग रहा है? 6 गेंदें, 15 रनों की जरूरत है. Very tough to tell. 15 required in the last over. Well settled batsman is on strike, but they have got their bowling spearhead. Gurushan Chiklagi, aka Mendes, also called as Rabada, from the commentary box end. 15 required of the last over. 15 of 6. Batting on 43 at the moment of just 19 deliveries. Prathamesh Naik, can he be the hero? Can he make the name for himself and his team? Can he take them to safety waters? The 6 deliveries will definitely give you the picture. First delivery goes over the top, and he has gone over the stands for half a dozen. 6 of the very first delivery, and right back in this game. 65 they move on to. Now requiring another 9 runs to win.
MTC 2025 सीजन 7 और तारीफ करनी चाहिए और प्रथमेश की जिस तरह से एक एंड पर विकेट गिर रहे थे तब जाकर इन्होंने पारी को संभाला है और 20 गेंदों में 49 पर खेल रहे, बहुत ही शानदार पारी। टूर्नामेंट का क्या दूसरा अर्धशतक आएगा वो देखने वाली बात है। और पहली गेंद पर गेंदबाज का जो है ना स्वैग से स्वागत हुआ, मिड विकेट बॉडीलर के बाहर गेंद को भेज दिया था। खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, डीप मिड विकेट बॉडीलर के बाहर दमदार छक्का। इस बार बढ़िया लाइन आउट ऑफ जॉसम, फुल लेन गेंद। इस बार बल्लेबाज थोड़ा दुविधा में रहे हैं। व्हाट अ मैच, कमाल का मुकाबला है। 4 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फील्डिंग के जमा बट्टा फ्लैग 3 पे करता खिलाड़ी है इस वक्त पॉइंट पर, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है। 4 गेंदे 9 रन चाहिए। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, फाइन लेग पर खिलाड़ी, बहुत फाइन रखा गया है। हवा में ऊपर गए लॉन्ग ऑफ पर दिलीप बिजवा और इन्होंने एक शानदार कैच लपका। प्रथमेश की पारी समाप्त। गेंद और बल्ले के बीच छिड़िए जंग, चढ़ाए क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। बल्लेबाज प्रथमेश अपने 49 के स्कोर पर बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। शाम में आपको लेके आऊंगा माइक्रोफोन पर। इंटरेस्टिंग मैच है। आपके पास अब 3 गेंदे हैं और 9 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, कमाल का मैच दोपहर के सत्र में। Completely deceived him with that slower delivery. Maybe rolling his fingers over. First one, before that delivery might have just been in the back of the mind of the batsman trying to go for the boundary. And he got completely flummoxed with that slow delivery and really neat catch by Bijwa on the fence. So well compiled innings of 49 coming to an end of Prathamesh. He was the only man that could just get the things as far as Ganpati Warriors Ponda are concerned. Diptesh Palkar, he's not a mug with the bat. He can go after the bowling as well. 3 deliveries requiring 9. And checking about the field, well, definitely, if they need to get this game done with, they need a boundary right now, right here, at this delivery. जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला और एक बड़े स्ट्रोक की मांग तो हो रही है। 3 गेंदों का खेल आना बाकी है, 9 रनों की जरूरत है और इस मैच में बहुत ही जबरदस्त घमासान, लाजवाब मुकाबला। 21 लाख का आंकड़ा पूरा किया टेनिस क्रिकेट.in ने। आज यहाँ भी दर्शक बढ़ने वाले हैं क्योंकि ये रोमांच जो है वह बरकरार इस टूर्नामेंट में। गुरुशा दीप्तेश के लिए गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बहुत दूर है। दिलीप बिजवा गेंद के नीचे, आउट, बल्लेबाज आउट। गुरुशाद ने तीसरा विकेट लिया है। पहले जगह सरकार, जिनकी सरकार नहीं चली, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया और उसके बाद में 2 झटके दिए हैं। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हैं दीप्तेश और इससे पहले इन्होंने आउट किया था प्रथमेश को। एक बड़ी मछली जाल में फंसी है जगत सरकार। प्रथमेश का विकेट, अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। 2 deliveries, 9 runs. That's a Herculean task right now. Captain Courageous walks out to bat. Can this Captain Courageous become courageous? And it's his day today as he picked up 5 wickets earlier. Can he be the golden man in this situation? Nerves of steel. Who has got the nerves of steel? 2 deliveries requiring 9. Pranal Savant strides out to bat. व्हाट अ मैच, कमाल का मैच है। अभी इनका इस पर कोई संदेह नहीं है। दर्शक भी बढ़ रहे हैं। जिस तरह से टेनिस क्रिकेट.in पर दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, 2 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। ये सिर्फ मैच नहीं है, ये पैशन और परफॉर्मेंस का अल्टीमेट टेस्ट है। गेम ऑन, गेम ऑन, टीवी रखे ऑन। और अब 5000 दर्शक दोपहर के सत्र में ये मुकाबला लाइव भी देख रहे हैं और सुरेश रैना ग्राउंड पर भी धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं। जो गाड़ियां जा रही ना वो ब्रेक लगा रहे, देखिए ये गाड़ियां रुक रही है, गाड़ियां नहीं आगे जाने वाली है क्योंकि कमाल का मैच, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर। गेंदबाजी करे गेंदबाज गुरुशाम, 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। काटे की टक्कर, बल्लेबाज स्ट्राइक पर प्रणव सावंत ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने पाइपर पूरा किया था। 4था पाइपर पूरा करने वाले खिलाड़ी बीच मैदान पर है। गुरुशाम 3 विकेट ले चुके हैं। अब टेंशन बढ़ता हुआ कंट्रीब्यूशन देने का समय आ गया। ओ बहुत अच्छी गेंद गुरुशांत की। ये गुरुशांत जो है ना बल्लेबाजों को शांत रखने का कारनामा करते हैं। पहले जगत सरकार की सरकार नहीं चली, उसके बाद में 3 शिकार आपने किए। Excellent delivery to get rid of Jagat Sarkar, and then these 2 deliveries to completely change the game. 1 delivery and requiring 9 now. Pranal Savant on strike. गोमटेश्वर बनाम गणपति वारियर्स।
गुप्तेश्वर टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस ओवर की अगली गेंद गुरुशांत, ऑफ टाइम के बाहर गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। अगर चौका भी मिलेगा तो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी खिलाड़ी भाग रहे, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है। और जो बादल ने छलांग लगाई थी और कमाल की फील्डिंग की थी, अद्भुत फील्डिंग की थी, वो 6 रन हो सकते थे, 1 ही रन दिया, 5 रन बचाए और कहानी इंटरेस्टिंग बनी है। और शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। तो ये मुकाबला कमाल का है, उसमें कोई संदेह नहीं था। शानदार खेल दोनों तरफ से रहा है, गणपति मरियस और गुमटेश्वर। थँक्यू प्रशांत. दोन्ही टीम जे नेक्स्ट मॅच आसा विदिन 5 मिनिट्स आमकां मॅच स्टार्ट करपाक जाय. सो रिक्वेस्ट करता मातशे आपले जे टेंट आहा प्ले टेंट ते घेवपाचे आणि टॉस केला सो फिल्डिंग टीम मातशी देवपाची. विदिन 5 मिनिट्स आमी दुसरी मॅच स्टार्ट करपाक जाय आमकां. दोन्ही टीमीना रिक्वेस्ट आहे की 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला मॅच सुरू करायची आहे. तो कॅप्टनने याची नोंद घ्यावी. थँक्यू. और संजय सर, मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे पास 3 विकल्प है। एक तो दिलीप बिजवा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास विकल्प है वरद दाभोलकर, हमेशा गेम चेंजर खिलाड़ी। तीसरा विकल्प है गोवा और सिंधुदुर्ग के खिलाड़ी पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गुरुशांत जिन्होंने जगत सरकार को शांत रखा। प्रथमेश का बेशकीमती विकेट लिया, सेट बल्लेबाज थे और आखिरी ओवर में जहां वो बड़ा स्ट्रोक आने के बाद प्रेशर आया था, अंडर प्रेशर सिचुएशन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। मैन ऑफ द मैच गुरुशांत।